First we decided to stop at Sonada, beside the Sonada railway station. तो गई अगर आप सोनादा या दार्जिलिंग आ रहे हो तो भर भर के गर्म कपड़े लेके ज़रूर आना। तो वहाँ पीछे से स्टार्ट होता है और थोड़ी सी आगे तक जाके है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे अपने सारे पैंट आईने और वो सारी चीज़ें मिल गई ठीक दाम में। और ये यहाँ के ओनर है। चल दार्जिलिंग में जाते हैं, दार्जिलिंग में जाके बाल कटवाना, कंटेंट मिलेगा। वो भी रिया की ना You start to value things when you are losing it, or maybe you have already lost it. In my case, I lost my health. What happened is, as you all know, there was 3 months lockdown, and during that period I was so much concerned about my health. I was exercising regularly, eating healthy food, drinking plenty of water, and taking enough of rest, which I'm sure all of you are doing. After the lockdown thing was over, gyms were open, I joined the gym, and for the first time I weighed 62 kgs. And if you don't know, till my college I used to be a very thin and lean guy, so I always wanted to have that bulky and fit body, and I was slowly reaching that goal. And for some reason after that I couldn't go to the gym for a month, and if I don't exercise I lose my weight very fast. But surprisingly this time, even after not exercising, I was still 61 kgs. I was happy, my family was happy to see me happy, and it was also the point where I started becoming careless. I started to think like, अब weight तो maintain ही है, gym जाने की क्या ज़रूरत. And today it's been like 4 months I have not been to the gym, and I have not been following any of those mantras which is required to have a fit body, and I really regret it. And when I look at myself in the mirror, I feel like crying. I have lost all my gains. जो भी है जैसा भी है, मैं अपनी गलती से सीख गया हूँ। अब एक्सरसाइज करूँगा तो कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली करूँगा। Anyways guys, welcome back to the channel. I am Abu Hurara and you are watching HQ Vlogs. And before starting this vlog, let's do a small unboxing. I have already done the unboxing, but I'll do it again for you guys. It is which is of a Joby 3K Gorilla Pod. By 3K it doesn't mean 3000, it means it can handle up to 3 kgs of weight. So if you are a vlogger, if you use a mirrorless camera or DSLR camera which weighs less than 3 kgs, then this is a must have tripod, and this is the best in the market. So I don't know if it's a good or a bad habit of mine. I want the best, I work for it and I get it. So here's the tripod, which has 3 legs, and these legs are flexible. You can just flex it any way you want. It has a metal ball head over here. You can just place your camera over here and move it accordingly as per your convenience. And before I used to hold the camera with my hand, which used to be very hand tiring, and it used to look a little awkward in the frame. So now it's going to be really easy for me to vlog. Anyways, now let's start the vlog. Okay guys, so we are not sure where we are going. So Ekant is with me. अभी करवाऊँगा उसके साथ भी इंट्रोडक्शन आराम से. सो हुआ ये है कि मेरे कज़न की शादी है, उसके लिए मुझे चाहिए एक लॉन्ग ब्लेज़र. करशंग में मैंने ढूंढा, मिला नहीं. सो सोनादा जाएंगे. सोनादा में अगर मिलता है तो सही, अगर नहीं मिलता है तो दार्जिलिंग जाएंगे. सो लेट्स गो. अब मैं शायद आपको सोनादा में मिलूँगा डायरेक्ट, क्योंकि दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड इट्स वेरी कोल्ड. Okay guys, so first we decided to stop at Sonada. इससे पहले एक स्टोर में देखा तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा ब्लेज़र टाइप का लॉन्ग कोट तो मिल रहा है. फिर भी देखते हैं दूसरी जगह में और मिल जाता है तो. सो अभी यहाँ पे वी आर जस्ट बिसाइड द सोनादा रेलवे स्टेशन. बहुत लोगों के पास नहीं है. और अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा यूट्यूब में, जो प्रॉपर व्लॉग था, अगर वो देखा होगा तो उसमें था एकांत. अब इस शक्ल वगल नहीं दिखा रहा है, एकदम फुल पैक्ड है. जब मैं जॉब करता था जियो में, तो यहाँ पे इस मार्केट में बहुत विजिट करता था मैं. बहुत परेशानियों का टाइम झेला है जॉब के चक्कर में, वो भी इसी ऐसे ही ठंड का टाइम था. और काफ़ी ठंड हो गई. अगर आप सोनादा या दार्जिलिंग आ रहे हो तो भर भर के गर्म कपड़े लेके ज़रूर आना, क्योंकि इट्स वेरी कोल्ड ओवर हियर. बेसिकली दिस इज द बाज़ार यहाँ का, जो मैंने पिछली बार, अगर आपने मेरा दार्जिलिंग का ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें भी दिखाया था आप लोगों को. तो वहाँ पीछे से स्टार्ट होता है और थोड़ी सी आगे तक जाके है. और देखा बहुत जगह तो है नहीं वो ब्लेज़र, और हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग दार्जिलिंग जा सकते हैं. लेकिन आई डोंट थिंक दार्जिलिंग जाना भी सही रहेगा, और काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है. और एकांत भाई ने अभी हेलमेट खोल दिया, मास्क खोलेगा फिर टोपी खोलेगा, है ना. वो भी बाल कटवाने वाला था, तो मैंने बोला कैंसिल कर दिया. मैंने बोला भाई बाल मत कटवाओ, चल दार्जिलिंग में जाते हैं, दार्जिलिंग में जाके बाल कटवाना, कंटेंट मिलेगा. तो देखते हैं अभी
क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो दूसरा और कोई बाकी काम नहीं है ना, तो दूसरा काम नहीं है। लेट्स क्या होता है अब। और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन रिनोवेशन चालू है। बिगड़ गया था क्यों? फायर लगा था ना। तो यहाँ पे आग लग गया था शायद, इसीलिए यहाँ का फिर से रिनोवेट हो रहा है। एंड आई होप बहुत खूबसूरत तरीके से बनाएंगे। सो दिस इज़ अ ब्लेजर जो मैंने सोच रहा हूँ। और कौन सी शॉप है? वैसे कोई बोर्ड वगैरह तो है नहीं। वैसे तो आईनिक था मेरे पास, फिर भी ये देखा तो इसके साथ ये ब्लेजर के साथ ये ज़्यादा सूट कर रहा था। कुछ चाहिए दो यो एक्सेल एक्सेल का टू लास्ट है तर डबल एक्सेल से ज़्यादा ठुलो त्यो ये एक्सेल है। So this is how I am looking. कैसा लग रहा है? कमेंट डाउन बिलो। भाई की खालिद भाई की शादी। खालिद भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग, दिस इज फॉर यू, ओनली फॉर यू, डेडिकेटेड फॉर यू। ओके गाइस, सो वैसे मैं सिर्फ ब्लेजर ही लेने आया था, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट अच्छा दिया इन्होंने। क्या दुकान का नाम क्या बोला तुमने? कमल क्लॉथ स्टोर सोनादा में। इफ यू आर कमिंग, एक बार ट्राई करना, कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे अपने सारे पैंट आईने और वो सारी चीज़ें मिल गई ठीक दाम में। और ये यहाँ के ओनर है, तो वही अगर आप कपड़े खरीदने आए तो एक बार ट्राई ज़रूर करना सोनादा में, कमल क्लॉथ स्टोर। तो ये दुढ़ाई अपनी आसानी भी हो गई क्योंकि दार्जिलिंग भी जाना नहीं पड़ा हम लोगों को। और अपने सोनादा वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है कर्शियोंग से, और आके यहीं पे सारा काम हो गया। अब हो गया शादी के मामले में टेंशन फ्री। फिर जो भैया बिल्कुल सोनादा का रेलवे स्टेशन है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ पे। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। है बहुत सस्ता में मिल गया ये, बहुत सस्ते में मुझे। मतलब दाम तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सस्ते कम्पेयर टू कर्शियोंग। अगर दार्जिलिंग में लेकिन कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वही है कि दार्जिलिंग में जैसा कलेक्शन है वैसे प्राइस भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। किसी ने बोला मुझे चल सोनादा में भी ट्राई कर लेते हैं, तो सोनादा में ट्राई किया और अच्छा हुआ, ट्राई कर लिया मुझे सारी चीज़ें। लेकिन अभी काफ़ी ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर इफ़ यू आर कमिंग टू दार्जिलिंग और कर्शियोंग और एनी हिल स्टेशन, मेक श्योर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ वार्म क्लोथ्स। कर्शियोंग इज बेस्ट तर है दार्जिलिंग। लेकिन स्नोफॉल जो होती है यहाँ के बाद से होती है, कभी कभार सोनादा में हो जाती है, या फिर आगे सोनादा क्रॉस करके थोड़ी आगे से आपको स्नोफॉल मिल जाएगी, लेकिन बहुत रेयरली होती है यहाँ पे स्नोफॉल भी। एंड यस, द ट्राइपॉड इज़ वर्किंग रियली फाइन। आप देख सकते हैं एंगल में फ़र्क। पहले तो सिर्फ मैं ही आता था, वैसे घुमाऊंगा तो दो जने भी आ जाएंगे फ्रेम में। एक आदमी अपना चेहरा नहीं दिखा। ओके, सो नाउ आई एम द पिलियन। ठंड में हमारे हिल्स में ना यूजुअली क्या होता है, जैसे ठंड होती है, एक बाइक है और दो राइडर्स है, मतलब दो जने एक बाइक के लिए। तो ये हम डिस्कस करने में ये वक्त निकल जाता है कि भाई पहले तू चला, इसमें ही 5-10 मिनट निकल जाता है। तो जैसे तैसे करके मैंने एकांत को कन्विंस कर लिया है बाइक चलाने के लिए। सो ही इज़ राइडिंग द बाइक एंड इट्स वेरी कोल्ड, आई मस्ट से वेरी वेरी कोल्ड। हाँ, तो ये भी हाफ फेस हेलमेट में, क्योंकि मेरे हेलमेट में ताम झाम ज़्यादा हुआ है, तो मैंने बोला तो यही हेलमेट लगा। तो चला रहा है भाई अपने। चाय वाय नहीं पियेंगे? नो चाय। सो अगर जैसे आप आ रहे हो, टूरिस्ट हो, तो सोनादा में वैसे है घूमने के लिए वैसे कोई जगह नहीं है, शायद फॉरेस्ट एरिया है ऊपर। अपोजिट अफ बिकज देयर इज अ वे गोइङ डाउन हैन। हां, त्यो मुनि चाहिँ अन्त एउटा चर्च उयो टेम्पलहरु छ। ओह या देयर इज अ टेम्पल and there is opposite to Holy Cross there is some way going down that will take you to some forest. I exactly don't know what that forest is, but people go there, so आप वहाँ जा सकते हैं। and yes, जैसे कि शॉपिंग के लिए मैंने बोला, मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा पैसे सेव हो गए मेरे। तो वेदर कुछ ऐसा है यहाँ का, इफ़ यू सी, ऐसे ही तो ठंड नहीं है। हाँ हाँ, दोस्तों एकांत को भी, मतलब एकांत भी बोल रहा है कि बहुत सही दाम में मिलेगा। अगर मैं कर्शियोंग या दार्जिलिंग में खरीदता तो इतने दाम में नहीं मिलता।
सही है यार, आप खुद आओ एक बार। जो मैंने देखा है कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। अब मेरे हिसाब के लिए जिस टाइप के कपड़े मुझे चाहिए थे उस हिसाब से मेरे लिए कलेक्शन बहुत अच्छा था और सही उसमें मिल गया यार। व्यू कितना अच्छा लग रहा है, जबकि आज दिन इतना क्लियर कोई खास नहीं है। आगे के पहाड़ देखो, पाइन ट्रीज आगे हमारा जो मैं आपको बोलता हूँ सेफली बाइक चलाओ, आराम से बाइक चलाओ। पहले मेरे पास एक पल्सर 220 हुआ करती थी, मेरी नहीं थी, मेरे बड़े भाई की थी। और तब हम लोग बच्चे थे, मैं ही बच्चा था, तो मतलब बहुत रैश राइडिंग करता था। सिलीगुड़ी में जाता था 130 135 एंड आई रियली थैंक गॉड दैट अभी उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद बाइक बेच दी। फिर कॉलेज जब हम लोग जाते थे तो सोना एकांत और मैं ही जाते थे, है ना, सालवाड़ी से कॉलेज। तो कॉलेज जाते थे तब इसके पास R15 हुआ करती थी और ये बहुत आराम से चलाता था। मतलब होता है ना कि आप देख के ही सीखते हो, ऐसे भी आई एम अ गुड लर्नर। बहुत हर सिचुएशन से मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखूँ। उसी तरीके से मैं इससे भी सीखा कि बाइक चलाना है तो आराम से चलाना है। तो इसके साथ रह बैठ के पिले न हो के मेरी भी आदत ऐसी हो गई कि मैं भी बहुत आराम से चलाता हूँ। आई थिंक आई शुड एंड द व्लॉग ओवर हियर। अब ऐसे मैंने सोचा था दार्जिलिंग जाऊंगा तो कुछ ज़्यादा लंबा होगा व्लॉग, वैसे कुछ नहीं हुआ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा व्लॉग था। तो आपको एक छोटा सा अपडेट भी मिल गया होगा कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है अभी। लाइफ में मतलब मेरे एक शादी है, वही अटेंड करनी है। सो ओके गाइज, आई विल एंड द व्लॉग ओवर हियर। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग and yes, thank you as always for the response that you have been giving to me. Okay, I'll see you next time in the next vlog. I am Abu Huraira signing off with Ekant bro, aka Bittu bro. Okay guys, bye bye, see you next time.